Dispersal of seed. Scattering away of the seed is known as seed dispersal. Scattering means बिखरना, सीड का एक जगह से दूसरी जगह बिखरना या फिर एक जगह से दूसरी जगह कैरी फॉरवर्ड होना ताकि हमारे दूसरे सीड्स भी ग्रो कर सकें. That is known as dispersal of seed. So why is there a need of seed dispersal? क्यों हमें ये करना पड़ता है? Because plants cannot move from one place to another. They cannot travel. They are fixed at one place. तो अगर say for example I have planted a watermelon in my garden. तो if I am having that seed, how will that seed, मैं चाहती हूँ कि कहीं और भी वो plant grow कर सके. So how it can grow? So that can be done with the help of dispersal, or otherwise means ज़रूरी नहीं है वाटरमेलन ही, कोई भी सीड ले लो. मतलब कोई अगर यहाँ नॉर्थ में ग्रो करता है, आई वॉन्ट दैट सेम प्लांट टू ग्रो इन द साउथ ऑल्सो. फ्रॉम वेयर डू दे गेट दैट सीड? Because of this dispersion. There are certain agents which help in the dispersal of seed. So since they cannot travel from one place to another, that is why seed dispersal is necessary. And second reason is, if all the seeds germinate at one point, they will not get air, water and warmth properly. तो in this you can see, अगर एक ही जगह पे से फॉर एग्जांपल मैं यहीं पे सारे के सारे सीड्स को डिग कर दूँ, प्लांट कर दूँ, देयर इज़ अ चांस कि सभी के सभी को एयर नहीं मिलेगी, वाटर नहीं मिलेगा, वार्मथ नहीं मिलेगी. किसी को कोई कंडीशन मिलेगी, किसी को कोई कंडीशन मिलेगी. देयर विल बी सफोकेशन, देयर विल बी वेरी मच ह्यूज क्राउड. सो to avoid that crowd, this dispersal is carried so that there may be no crowd and there may be no insufficient condition so that the seed may not germinate. We want the seed to germinate, that is why we should give them all the required conditions as well. Next is, what are the agents of dispersal? First is wind. So wind, प्लांट्स जिनकी लाइट वेट सीड्स होते हैं वो विंड के साथ मूव कैरी फॉरवर्ड हो जाते हैं, लाइक डेंडलियन एंड मेपल. हियर आई एम अ डेंडलियन प्लांट. आई हैव टफ्ट्स ऑफ हेयर विच एक्ट लाइक अ पैराशूट. विंड्स कैरी अवे माई सीड. तो इनके जो हेयर्स होते हैं वो एक गुच्छा सा बना हुआ होता है पैराशूट की तरह, और विंड उनके सीड्स को ले जाती है, लाइक यू माइट हैव सीन बुड्ढी माई के बाल. So that is, उसके साथ एक सीड लगा होता है. That is the in that dispersion is taking place with the help of the wind. Hello, I am sycamore plant. I have winged seeds that are carried away by the wind. तो इनके जो seeds होते हैं ये wing की shape में होते हैं और ये carry forward हो जाते हैं wind के साथ. ठीक है. So there are three examples. One is dandelion and second is sycamore. Third is maple. Next is water. So water also helps in the dispersion of the seed. How does it help in the dispersion of seed? Seeds of plant growing near water bodies are dispersed by water. तो क्या होता है, जो भी प्लांट्स होते हैं जिनके सीड्स वाटर के बॉडीज, मतलब वाटर के आसपास, लेक्स, ओशंस के आसपास ग्रो कर रहे होते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह पानी के बहाव के साथ कैरी फॉरवर्ड हो जाते हैं. दे हैव फाइब्रस कवरिंग विच हेल्प देम टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. उनकी जो कवरिंग होती है वो फाइब्रस होती है, मतलब ऊपर फाइबर की तरह लगा हुआ होता है, जिस कारण वो एक जगह से दूसरी जगह इजीली फ्लोट हो जाते हैं, कैरी फॉरवर्ड हो जाते हैं. लाइक हियर, hello, I am coconut palm. I can travel several thousands kilometers across ocean. I have fibrous coating which helps me float. So this is a coconut plant and it is having a fibrous covering due to which it can float and it can cover many thousand kilometers and it can be dispersed. Next is, hello, I am lotus. I have spongy structure which help me float. So this is a lotus plant and since it is spongy in structure, so it helps them to float. Next is the dispersion by animals. Some seeds are eaten or thrown away by animals. These seeds grow into new plant. तो कुछ सीड्स जो होते हैं वो ईट किए जाते हैं और बाद में वो थ्रो किए जाते हैं एनिमल्स के द्वारा. सो दैट इज द डिस्पर्शन ऑफ सीड बाय एनिमल. तो वो सीड्स जब एक जगह से दूसरी जगह कैरी फॉरवर्ड होते हैं, दैट इज डन विद द हेल्प ऑफ डिस्पर्शन बाय एनिमल्स. क्या होता है, एनिमल्स के कईयों के हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो उनके सीड्स उनके हेयर्स के साथ स्टिक कर जाते हैं, कईयों के फुट के साथ स्टिक कर जाते हैं, जिस कारण वो एक जगह से दूसरी जगह कैरी करके
डिस्पर्सल में हेल्प करते हैं। एनिमल्स लाइक डॉग एक्सेट्रा एक्ट एज अ कैरियर टू डिस्पर्स सीड्स फार अवे फ्रॉम द पेरेंट प्लांट। सो ये एक कैरियर बन जाते हैं। माइस बरी द एक्स्ट्रा सीड्स इन द सीक्रेट प्लेस टू यूज इट इन टाइम्स व्हेन फूड इज हार्ड टू फाइंड। समटाइम्स दे फॉरगेट अबाउट दिस सीड्स, thus these seeds germinate and grow into new plant. सो क्या होता है, चूहे कुछ सीड्स को बरी कर देते हैं ग्राउंड में, ताकि अगर उनको कभी मिले ना कुछ खाने के लिए, सो दे कैन ईट दैट प्लांट्स, दैट सीड्स। सो लेकिन कई बार वो भूल जाते हैं कि हमने यहाँ पे रखा है, एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम दैट स्टार्ट्स ग्रोइंग इनटू अ प्लांट। सो दीज आर ऑल्सो हेल्पफुल इन डिस्पर्शन, दैट इज वाई दिस इज अ मेथड ऑफ डिस्पर्शन बाय एनिमल्स. Next is explosion. Some seeds open and burst on drying. They scatter in all direction. Example pea, poppy. तो क्या होता है कि कुछ जब वो सूख जाते हैं तो वो बर्स्ट कर जाते हैं, एक्सप्लोड कर जाते हैं लाइक अ क्रैकर. दैट इज नोन एज एक्सप्लोजन. हेलो, आई एम पी प्लांट. व्हेन माय सीड्स आर ड्राई माय पोर्स बर्स्ट ओपन एंड द पीस आर स्कैटर्ड अवे फ्रॉम मी. तो उनके पोर्स ओपन हो जाते हैं और पीस स्कैटर हो जाते हैं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह फैल जाते हैं. दैट इज नोन एज एक्सप्लोजन, डिस्पर्शन बाय एक्सप्लोजन. नेक्स्ट इज सीड एविएशन. सम प्लांट्स कैन रिप्रोड्यूस seeds which can fly. These seeds are of different shapes. तो कुछ plants होते हैं जिनमें seeds ऐसे प्रोड्यूस होते हैं जो फ्लाई कर सकते हैं, लाइक अ विंड, मतलब कि विंड के साथ वो फ्लाई करते रहते हैं. दे आर ऑफ डिफरेंट शेप्स. दैट टाइप ऑफ सीड्स आर नोन एज सीड एविएशन. नेक्स्ट इज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन. तो कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो सीड्स के थ्रू नहीं ग्रो करते, बट दे ग्रो फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, लाइक द रूट, शूट, स्टेम, लीव्स. So that type of plants, that process is known as vegetative propagation. Reproduction और propagation is one and the same thing, जिसमें seed की help नहीं ली जाती but plant के किसी और part की help ली जाती है, जैसे कि root, stem और the leaves. And this process is known as vegetative propagation, or else we can say vegetative reproduction also. So the examples are like in stem cutting. If I'm vegetatively propagating the stem, so that through stem cutting, the example is rose, hibiscus, money plant. Through root, it is dahlia and carrot. Leaves, bryophyllum, bigona. Underground stem, onion, ginger. Spores, mushroom and mold. So potato also reproduces by bud-like structures called the eyes. So they are having a bud-like structure. You can see ये eyes जैसा एक bud-like structure है. This helps in the growth of new potatoes. So this is also a vegetative reproduction method.